the class Research Methods for Business. Today we are going to discuss chapter number 5, the elements of research design. This is the research process. We are continuing from the previous chapters. In this chapter we will discuss the elements of research design. The objectives of this chapter: after reading this chapter we will be able to understand the different aspects relevant to the designing a research study, identifying the scope of any given study and the end use of the results, and decide for any given situation the type of investigation needed, the study settings, the extent of research interference, the unit of analysis, and the time horizon of the study. And we also identify which of the two, the causal or correlation study, would be more appropriate to the given situation. Till the point we had already discussed the broad problem area, the problem definition, theoretical framework in which we have identified the types of variables, their associations among them, and draw a theoretical framework. And after that we had generated the hypotheses based on this developed theoretical framework. Now we are at the stage 6, the scientific research design. In this research design, we have to discuss the purpose of study, the type of investigation, elements, extent of research interference, study setting, unit of analysis, and time horizon. And also we have to go to check it out whether we have to go for correlation study or causal study. The purpose of study as for categories इसको हमने डिस्कस किया, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं. The first element of research design is the purpose of study. Under the purpose of study we have 4 different purposes of study: exploratory research, descriptive research, hypothesis testing or analytical research, case study research or analysis. So the first one is exploratory study. An exploratory study is undertaken when not much is known about the situation at hand or no information is available on how similar problems or research issues have been solved in the past. So ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो लिटरेचर है वो अवेलेबल ना हो, एग्जिस्टिंग लिटरेचर अवेलेबल ना हो या बहुत कम हो, या आपकी रिसर्च जो है वो बहुत ही न्यू नेचर की है, एक आप किसी नई चीज़ को रिसर्च करना चाह रहे हैं और यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. सो जब आप किसी नई टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, तो इस टाइप की स्टडी को हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहते हैं. लाइक करंट सिचुएशन में कोविड-19 के ऊपर जो रिसर्चेज हो रही हैं, उस पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सिमिलर टाइप के फ्लू पर अवेलेबल है, लेकिन जो कोविड का जो वायरस है उसका अपना जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल न्यू नेचर का था. तो उस पर जब रिसर्चेज हुई तो वो एक्सप्लोरेटरी टाइप की रिसर्च हो रही है. Second, descriptive research. A descriptive study is undertaken in order to ascertain and to be able to describe the characteristics of variables of interest in a situation. जब आप किसी भी वेरिएबल की प्रोफाइलिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे होते हैं, तो इस टाइप की रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू जस्ट वांट टू हाईलाइट द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल इन टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, लाइक what type of organization it is, whether it's a textile mill, it's a weaving mill, it's a spinning mill, what is the size of its assets, how many employees they have, what is the type of machinery they are having, how much machinery they are having, how many plants they are having. तो जब आप just प्रोफाइल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो इस टाइप की रिसर्च को आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं. Then we have hypothesis testing or analytical research. Studies that engage in hypothesis testing usually explain the nature of certain relationships or establish the differences among groups or independence of two or more factors in a situation. जब आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशंस या रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे होते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं, तो इस टाइप की रिसर्च को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं. तो आप जिस टाइप की रिसर्च अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या आपने अभी तक जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी
इसमें हाइपोथेसिस बन रहे थे और उसको टेस्ट करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ हो रहे थे, जैसे रिग्रेशन है या स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है। ठीक है, तो इस टाइप की रिसर्च को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग या एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स उनके दोनों एसोसिएशंस को हाइपोथेसिस की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टेस्ट किया जाता है या चेक किया जाता है। Then we have case study analysis. Case study analysis involve in-depth contextual analysis of matters related to similar situation in other organizations. So whenever you are having the in-depth analysis of a specific situation, वो situation किसी एक organization में आ रही हो उसको भी आप evaluate कर सकते हैं, या similar situation in different organization में भी आ रही हो तो उसको भी आप जब in-depth evaluate करते हैं तो इसे case study analysis कहते हैं। तो that is a specific contextual analysis. थोड़ा ब्रीफली देखें तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर सपोज एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है और आप उसको इन डेप्थ एवेलुएट करते हैं और केसेस की फॉर्म में चेक करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड दीज एब्सेंटिज्म्स, तो दिस इज नोन एज केस स्टडी एनालिसिस। ठीक है, तो कंटेक्सचुअल एनालिसिस की फॉर्म में जब आप इसको एवेलुएट करेंगे तो वो केस स्टडी एनालिसिस होगा। नाउ हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारा सेकेंड एलिमेंट है रिसर्च डिज़ाइन का। ये टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक कॉजल और एक कोरिलेशनल। कॉजल इन विच वी आर फोकसिंग ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आप एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट्स को कॉजल फॉर्म में इवेलुएट कर रहे होते हैं तो इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन को कॉजल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डज स्मोकिंग कॉज कैंसर? तो यहाँ पर स्मोकिंग के नेगेटिव इफेक्ट को शो करवाया जा रहा है कि स्मोकिंग वजह से कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि डज the monetary benefits or the monetary motivations can enhance the productivity of employees? So this is the causal relationship, you are affecting the cause and effect relationship over there. सेकेंड हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की टाइप थी कोरिलेशनल, जहाँ पर आप अपना रिसर्च क्वेश्चन रिलेशनशिप की फॉर्म में डेवलप करते हैं। आपको नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है या नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। जब आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पता नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप की बेसिस पर ही आप रिसर्च अपने क्वेश्चन जो है वो स्टडी का रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, आर स्मोकिंग एंड कैंसर रिलेटेड? तो यहाँ पर स्मोकिंग और कैंसर के दरमियान सिर्फ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वी आर अनेबल टू नो वेदर इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। तो जब आपको डायरेक्शन पता हो तो आप कॉजल रिलेशनशिप को और कॉजल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हैं, और जब आपके पास रिलेशनशिप की डायरेक्शन ना पता हो तो फिर आप कोरिलेशनल जो है वो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हैं। थर्ड एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस विद द स्टडी, कि एक रिसर्चर जो है वो उस रिसर्च में कितना इंटरफेयर कर सकता है, कितना इंटरफेरेंस अपना शो करवा सकता है। ठीक, तो रिसर्चर इंटरफेरेंस उसको हम कहते हैं। तो मतलब उसके अंदर कितनी मॉडिफिकेशन कर सकता है, कितना उसको कंट्रोल कर सकता है, रिजल्ट्स को कितना प्योरीफाई कर सकता है। तो इस टाइप की सेटिंग को हम रिसर्चर इंटरफेरेंस कहते हैं। तो तीन टाइप के रिसर्चर इंटरफेरेंस होते हैं, मिनिमल, मॉडरेट और एक्सेसिव। मिनिमल रिसर्च इंटरफेरेंस मीन्स के रिसर्चर का बहुत थोड़ा कंट्रोल है, ना होने के बराबर है। मॉडरेट इंटरफेरेंस का मतलब है कि रिसर्चर किसी हद तक कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और एक्सेसिव इंटरफेरेंस मीन्स रिसर्चर का फुली कंट्रोल है आपके सेटिंग के ऊपर। तो अभी हमने रिसर्चर इंटरफेरेंस पर डिस्कस किया था। तो रिसर्चर इंटरफेरेंस में हम रिसर्चर्स की जो रिसर्च सेटिंग है उस पर कंट्रोल को देख रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी सेटिंग की, कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वेदर इट्स कंट्राइव्ड और नॉन कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड मीन ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि नेचुरल ना हो बल्कि ह्यूमन ने उसके अंदर इंटरफेरेंस करके मॉडिफाई कर दिया हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट को कंट्राइड इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे लेबॉर्ट्री सेटिंग जो है वो कंट्राइड, फुली कंट्राइड इन्वायरमेंट है, जहाँ पर तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया है ताकि एक्सटर्नल फैक्टर का जो इफेक्ट है वो कंट्रोल किया जा सके। नॉन कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर रिसर्चर किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा होता बल्कि वो नेचुरल सेटिंग होती है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को नॉन कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट कहा जाता है। स्टडी सेटिंग्स हमने अभी बात की थी कि दैट में बी कंट्राइव्ड और दैट में बी नॉन कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट। तो इसको हम थोड़ा सा फील्ड स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, और साथ ही हम रिसर्चर इंटरफेरेंस को भी एसोसिएट करेंगे। वो मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया है दोबारा से। तो फील्ड स्टडी
वो स्टडी जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट की जा रही हो, जिस पे रिसर्चर किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, तमाम रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आ रहे होते हैं, तो ऐसी स्टडी को फील्ड स्टडी कहा जाता है। तो अगर ये फील्ड स्टडी ऐसी है तो फिर हम स्टडी सेटिंग देखें तो इसकी कौन सी होगी, नॉन कंट्राइव्ड होगी, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सेटिंग जहाँ पर किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो ऐसी फील्ड स्टडी होगी। तो यहाँ पर रिसर्चर इंटरफेरेंस क्या होगी, ऑब्वियसली मिनिमल होगी, ना होने के बराबर होगी, कि रिसर्चर यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं डाल रहा। तो इस टाइप की स्टडी को फील्ड स्टडी कहेंगे। फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ऐसी सेटिंग जहाँ पर कुछ चीज़ों को तो कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी कंट्रोल से बाहर हैं, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आप एक छोटे से लैब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ चीज़ों को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सेटिंग को हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंट्राइव्ड एंड नॉन कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट। टू सम एक्सटेंट इट्स अ कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम रिसर्चर इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पर रिसर्चर का इंटरफेरेंस मॉडरेट है, मतलब कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लैब एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, मोस्टली चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट होगा, मीन्स उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है। और यहाँ पर रिसर्चर इंटरफेरेंस जो है वो एक्सेसिव होगी, मतलब रिसर्चर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ना होने के बराबर ऐसी चीज़ें जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सेटिंग हम लैब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो किस यूनिट से करेंगे। वो एक इंडिविजुअल होगा, वो ग्रुप होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कल्चर होगा, क्या होगा। हम वन बाय वन देखते हैं कि अगर आप क्वेश्चन फिल करवा रहे हैं ई कॉमर्स से रेलिवेंट, कि आपका एक्सपीरियंस ई कॉमर्स पे कैसा रहा, या कौन से फैक्टर है जो कि आपको रीपरचेज इंटेंशन की तरफ लेके जाते हैं, तो वो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल होगा, कि हर बंदा अलग अलग आपसे रिस्पॉन्स देगा, आपको हर एक इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चन फिल करवाएगा, ठीक है। तो इस सेटिंग में हमारे पास यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, इंडिविजुअल। तो अगर आपके पास कुछ सेटिंग ऐसी है कि आप एक इन्फेंट जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके साथ जॉब करने वाले पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो अब आप जो है वो एक कपल से क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिल के आपको सिंगल रिस्पॉन्स देंगे। तो इस टाइप के यूनिट ऑफ एनालिसिस को हम डाइएट्स कहते हैं, कि दो लोग मिल के एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। समटाइम आपको फैमिली से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछना होता है, कि पूरी फैमिली को है किसी एक सिचुएशन में किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, स्पेसिफिकली कोविड-19 की सिचुएशन में किस टाइप के प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, तो पूरी फैमिली या ग्रुप मिलकर एक सिंगल रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इस टाइप के यूनिट ऑफ एनालिसिस को हम ग्रुप कहते हैं। समटाइम आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट सिंगल रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस की अर्निंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, टोटल एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, टोटल अर्निंग्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और यू हैव टू कंपेयर द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ओवर हियर। समटाइम यू आर इवेलुएटिंग द कल्चर्स एज वेल, कि आपका कल्चर वो है वो भी यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है। यू वांट टू चेक इट आउट द इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिव कल्चर, के इंडिविजुअल कल्चर और कलेक्टिव कल्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है। आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो वेदर द कल्चर इज़ इम्पैक्टिंग और नॉट। तो आपका कल्चर जो है वो यहाँ पर यूनिट ऑफ एनालिसिस है, कि वो कंट्रीज जो कि कलेक्टिव कल्चर में आते हैं उनको आप अलग से ले लेंगे, और वो कल्चर जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में आते हैं उनको आप अलग से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। टाइम होरिजन की बात करें कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रही हैं उसमें डाटा कलेक्शन इंडिविजुअल से कितने स्पैन ऑफ टाइम्स में होगी। तो अगर आप एक इंडिविजुअल से एक ही स्पैन ऑफ टाइम में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्रॉस सेक्शन स्टडी कहते हैं। टिपिकली जो आपकी सर्वे बेस्ड रिसर्चेज होती हैं वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज होती हैं, आप एक ही मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं और इसी पर ही एनालिसिस कर देते हैं। सम टाइम आप जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो पहले आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट रन करते हैं और उसके बाद दोबारा डाटा कलेक्ट करते हैं। मीन्स आपका स्पैन ऑफ टाइम डुअल हो जाता है, आप दो डिफरेंट टाइम हॉरिजन्स के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं सेम रिस्पॉन्डेंट से। तो सेम रिस्पॉन्डेंट से दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चेज आपकी होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इससे रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं
वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको टाइमली आंसर किया जाएगा। थैंक यू।